الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامیر المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، یا رسول اللہ یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرواں عرش پہ اٹھتا ہے فریرہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، واہ واہ۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ سبحان اللہ۔ حضرات آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کرے پڑے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات آج ایک اللہ کے مقدس ولی کی یاد میں یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ حضرت علامہ مولانا چمن قادری علیہ الرحمہ کی یاد میں آج اور آپ اور ہم یہاں پر مجتمع ہوئے ہیں۔ اہل اللہ سے الفت و محبت اور ان سے عقیدت و وارفتگی رکھنا اور ان کی یاد سننا اور سنانا، یہ آپ اور ہم سب کے لیے کامیابی کا بہترین سرٹیفکیٹ ہے۔ بزرگان دین کی زندگیاں اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ جب تک وہ زندہ رہیں تو گمگشتہ راہوں کو نیک راہ بتلاتے رہیں، بے شک، اور ان کی زندگی میں ایک سنہرا انقلاب برپا کرتے رہیں، اور ان کو راہ مستقیم پر گامزن فرماتے رہیں، اور بعد وصال بھی ان کی تربت سے اور ان کے مرکز اثر سے لوگوں کو آج بھی فیض اسی نحس سے ملتا ہے جس طریقے پر ان کی زندگی ظاہرہ میں ملتا تھا۔ ان مخصوصان بارگاہ الہی سے قلبی تعلق رکھنا، ان کی یاد منانا، ان کی تقریبات منانا، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا اور ان کی زندگی سے روشنی حاصل کرنا، یہ مومن کے لیے کامیابی کا بہترین سرٹیفکیٹ ہے۔ رب نے قرآن مجید میں ان نفوس قدسیہ کی عظمتوں کا اظہار فرماتے ہوئے اپنے بندوں کو بتایا کہ اے میرے وفادار بندو، وہ جو دولت ایمان سے مشرف ہو، تم اپنے رب سے ڈرو۔ تو اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین فرمایا۔ اسلام کا ایک پاکیزہ اسلوب رہا ہے قرآن حکیم کا، جو بالکل ایک ممتاز اسلوب ہے کہ مکی زندگی جو رہی میرے آقا کی 53 سالہ، اس زندگی میں 13 برس تک کلام ربانی کی آیت پاک نازل ہوتی رہی مکہ مکرمہ میں، اور 10 سال تک کلام ربانی کی آیت پاک نازل ہوئی مدینہ منورہ میں۔ 23 سال کا یہ عرصہ کلام ربانی کی تکمیل میں پورا ہوا۔ مکی زندگی میں جو اللہ نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں جو آیت کریمہ پیش کی، جو قرآن کی آیات اپنے حبیب کی بارگاہ میں پیش کی، تو ہر جگہ پر رب اپنے محبوب کی رہنمائی فرماتا رہا۔ اس نزول کی منزل میں اللہ نے ایک مخصوص آیت نازل فرمائی، وہ ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ یہاں پر خصوصی حکم نہیں تھا، عمومی حکم نہیں تھا، خصوصی حکم نہیں تھا۔ یہاں پر عمومی حکم تھا، خصوصی حکم نہیں تھا۔
सब के लिए फरमान था, खुसूसी फरमान नहीं था। तो अल्लाह ने यहां पर एक बेहतरीन जुमला फरमाया, या अय्युहन्नास, ए लोगों। नास से ताबीर किया, आम लोग इसमें आ गए, मोमिन भी आ गए, गैर मोमिन भी आ गए, अपने भी आ गए, बेगाने भी आ गए। सबके लिए खिताब फरमाया कि ए लोगों, मेरे महबूब की बातों को सुनो, मेरे नबी की बातों को सुनो, मेरे मुस्तफा के हिदायत को समझने की कोशिश करो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने या अय्युहन्नास से ताबीर किया। और मदीना में सरकार की आमद के बाद अल्लाह ने जो अपने हबीब की बारगाह में आयत करीमा पेश की, उसमें अक्सर रब ने उन लोगों को मुखातब किया जो साहिब ईमान थे। तो अल्लाह ने या अय्युहन्नास से नहीं बल्कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू से ताबीर किया। ईमान वालों को रब ने मुख्तस फरमा दिया। यहां पर अल्लाह ने ईमान वालों को खास करके, ईमान वालों को जब अल्लाह ने खास कर दिया तो यहां पर गैर मुसलमानों को निकाल दिया, यहूद व नसारा को निकाल दिया, और जो अतराफ में कौमें थी उनको निकाल दिया। ईमान वालों को रब ने मुख्तस करके फिर फरमाया कि ए ईमान वालों, तुम मेरे नबी की बातों को सुनो, मेरे मुस्तफा की बातों को सुनो, और मेरे नबी के हिदायत को समझने की कोशिश करके उस पर अमल करने की कोशिश करो। तो अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू फरमाया। ईमान वालों को जब रब ने मुख्तस कर दिया और ईमान वालों को रब ने खास करके फिर अनोखा दर्स दिया जो जिंदगी के हर मोड़ पर काम आने वाला है। जब शूरी जिंदगी में ये मुसलमान कदम रखता है और बुलूगत की मंजिल के करीब पहुंचता है, उस दहलीज से लेकर के जिंदगी की आखिरी रमक तक एक निराला और अनोखा सबक, अनोखा दर्स मोमिन के काम आने वाला है। उस सबक को अल्लाह ने इस आयत करीमा में तब्दील का शर्फ बख्शा कि ए ईमान वालों, तुम अपने रब से डरो। आप उलमाए किराम से पूछे, हुफाज़े किराम से पूछे कि कलाम रब्बानी का नुज़ूल एक पाकीज़ा उसलूब के अंदर नुज़ूल हुआ है। इब्तिदा से लेकर के इंतहा तक कुरान में आपको सैकड़ों आयतें मिलेगी जिसमें रब ने जितनी दो चीजों पर हिदायत दी है उतनी किसी चीज पर ताकीद नहीं फरमाई। एक तो पंज वक्त नमाज पढ़ने का पैगाम दिया है और दूसरा रब से डरने का पैगाम दिया है। जितनी नमाज की ताकीद है उतनी किसी चीज की ताकीद नहीं, और जितनी खशियत इलाही की तलकीन है उतनी किसी चीज की तलकीन नहीं। गोया के असासी जो पहलू है मोमिन के ईमान की पासबानी का, ईमान के तहफ़्फ़ुज़ का और ईमान की बका का, वो है खुदा का खौफ। ये अल्लाह वालों की जिंदगी, बुजुर्गान दीन की जिंदगी, औलिया किराम की जिंदगी, मुकरबान बारगाह की जिंदगी को अगर आप गहरी नजर से देखेंगे तो खासान खुदा की जिंदगी हर मोड़ पर आपको खशियत इलाही में गोते लगाती हुई नजर आएगी कि अल्लाह के वली रात में खड़े होते हैं तो सफेदी नमूदार हो जाती है, और सुबह के वक्त खड़े होते हैं तो रात के सितारे मुस्कुराने लगते हैं। उनको होश नहीं रहता कि कब खड़े हुए हैं और कब तक आंसू बहाते रहेंगे। ये खुदा का खौफ इन नुफूस कुदसिया पर इतना तारीख था कि हर वक्त खुदा के खौफ में मुनहमिक रहा करते थे। इसी रब की खशियत ने उनको ऐसी अजमतें बख्शी कि वो विलायतों के आफ्ताब बन गए या विलायतों के महताब बन गए। ये सब खुदा के खौफ का नतीजा है। इबादत करने का जज्बा और खुदा से तमाम अहकाम रब्बानी की बजा आवरी का जज्बा, ये तमाम अनसर कब मुज्तमा होते हैं जब बंदे के दिल में खुदा का खौफ पैदा होता है। ये एक बुनियादी चीज है कि जिस वफादार के दिल में खुदा का खौफ पैदा हो गया वो कभी बेनमाजी नहीं बनेगा, वो कभी शराबी नहीं बनेगा, वो गलत किरदार का मालिक नहीं बनेगा, बेरारवी का हामी नहीं बनेगा, खजाने खुदा का मुखालिफ नहीं बनेगा, बाप का नाफरमान बेटा नहीं बनेगा, माँ का गद्दार बेटा नहीं बनेगा, गुरूर का पुतला नहीं बनेगा, रिश्वतखोर नहीं बनेगा, बदजुबान नहीं बनेगा और बद अखलाक नहीं बनेगा। जितनी कबाहतें हैं और जितनी बुराइयां हैं इन तमाम की बुनियादी जड़ जो है वो बेखौफी है। जिसके दिल में खुदा का खौफ नहीं वो जानवर की मानंद है। जानवर कभी इधर मुंह डालता है कभी उधर मुंह डालता है, उसे कोई एहसास नहीं कि ये खेत किसका है, ये जमीन किसकी है, ये फसल किसकी है, मैं इसको क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं। वो बेचारा जानवर है, उस पर कोई इल्जाम नहीं। जिस तरीके से जानवर किसी हकीकत से आशना नहीं होता है, जिसके दिल में खुदा का खौफ नहीं वो जानवर की मानंद है, गलत राहों पे चलता है, कभी बाप के खिलाफ, कभी माँ के खिलाफ, कभी उस्ताद के खिलाफ, कभी पीरो मुर्शिद के खिलाफ। जितनी लर्जिशें होती है सब खुदा से नाखौफे के बिना पर होती है। आप तजर्बा करके इस बात का मुशाहदा फरमा लें कि जिस वफादार के दिल में खुदा का खौफ पैदा हो गया वो कभी मस्जिदों से गाफिल नहीं रहेगा, वो कभी नमाजों में कोताही नहीं करेगा, वो अल्लाह वालों की शान में तनकीस नहीं करेगा, वो कभी अल्लाह से अकीदत नहीं तोड़ेगा, वो कभी उस्ताद से गद्दारी नहीं करेगा, वो कभी बड़ों से बेअदबी नहीं करेगा, वो कभी छोटों पर जुल्म और इस्तेबदाद नहीं करेगा। जितना खौफे खुदाबंदी उसका बढ़ता चला जाएगा, अश्कबारियां उसकी उतनी बढ़ती चली जाएगी, दिल उसका उतना दहलता चला जाएगा, अकीदत का तूफान बढ़ता चला जाएगा, रिक्कत का तूफान बढ़ता चला जाएगा, अकीदत की वादी में घुसता चला जाएगा, वो एक खुश्क लकड़ी की तरह हो जाएगा। उठो तो आमिर
आंख में आंसू, बैठो तो आंख में आंसू, चलो तो आंख में आंसू, पढ़ो तो आंख में आंसू, सो तो आंख में आंसू। वो जब कुरान की तिलावत करेगा आंसुओं का नजराना पेश करेगा, और जब सर झुकाएगा आंसू का मोती टपकेगा। ये खुदा का खौफ इंसान को गुनाहों की आराइशों से पाक करके मुशफ़ा बना देता है, मुजल्ला बना देता है। इसमें बुजुर्गान दीन की जिंदगी का मुताला करने वाले जानते हैं, गरीब नवाज की जिंदगी हो, गौसल वरा की जिंदगी हो, महबूब सुभानी की जिंदगी हो, मारूफ करखी की जिंदगी हो, जुनैद बगदाद की जिंदगी हो, या सरकार इमाम अहमद रजा की जिंदगी हो, या अल्लामा चमन कादरी अलैहि रहमा की जिंदगी हो। अल्लामा चमन कादरी साहब अलैहि रहमा की जिंदगी का आप मुताला कीजिए। कादरी साहब से पूछिए कि वो कैसे थे, इतने बड़े आलिम थे, इतने मुकद्दस वली थे, जब बूंदी की सरजमीन से दाता हुजूर की मोहब्बतों को अपने दामन में समेट करके, पीरी इब्राहिम की उल्फतों को अपने अंदर ले करके, गौसे आजम की करामत पढ़ करके बूंदी की सरजमीन से जब निकला करते थे, तो कभी कलकत्ते की सरजमीन पर नदियों के छक्के छुड़ा रहे हैं, कभी राजस्थान में रह करके सुन्नियत का नाम कर रहे हैं, और कभी अरब मुल्क के अरब में जाकर के मुनाजरा कर रहे हैं। आप मुलाहिजा फरमाए कि अल्लामा चमन कादरी अलैहि रहमा इतनी बुजुर्गीदा हस्ती थी, इतने मुकद्दस वली, इतने बड़े आलिम, जिन्होंने जाकर के मुल्क के अरब में मुनाजरा किया उलमाए और से। वो दूसरे उलमा इंडिया के टॉप लेवल के उलमा में हजरत अल्लामा चमन कादरी अलैहि रहमा का नाम आता है, जिसने मुल्क के अरब में जाकर के अपने यहूदियों से, उलमाए अरब से मुनाजरा किया। सलाम पर आपने सलाम पढ़ा तो उन्होंने मना कर दिया, आप नहीं माने, सलाम पढ़ते रहे। उन्होंने आपको 2 दिन तक जेल में डाल दिया और 2 दिन तक जेल में रखा। जब जेल में रखा तो उन्होंने कहा भाई मुनाजरा करो, आप सलाम क्यों पढ़ते हो? मुनाजरा किया। अल्लामा चमन कादरी अलैहि रहमा वो हस्ती थी, उन्होंने कहा मुनाजरा कर लो। वो उलमाए अरब सब गए, अपने किताबें लेकर के आए, किताबें रखी, मुनाजरा शुरू हुआ। वो अल्लामा चमन कादरी से सवालों जवाब होने लगे, और सब सवाल हो रहे थे, और इधर से जवाब इस तरीके से दे जा रहे थे कि गौसे आजम की करामत बोल रही है, ऐसा लग रहा था कि दाता हुजूर की मोहब्बत बोल रही है, ऐसा लग रहा था कि पीर इब्राहिम की उल्फत बोल रही है, कि ऐसा लग रहा था कि गौसे आजम सहारा दे रहे हैं। उधर से सवाल किया जा रहा है, इधर से जवाब दिया जा रहा है। वो पीर आरे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत फैज़ान अल्लामा चमन कादरी अलैहि रहमा जा रहा है। कई अलकाब से आपको याद किया गया। उन्होंने जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं, वो तारीख के सबात पर ता क़यामत चमकते रहेंगे। उनकी मिसाल दुनिया नहीं बता सकती। और ऐसे मुर्शिद, ऐसे पीर और ऐसे मुर्शिदे पर हक, दस्ते हक परस्त, अजीम रूहानी पेशवा, करीमुश्शान वली, अजीमुश्शान रहनुमा, जिनकी खिदमत को दुनिया नहीं भुला सकती। निगाहे करम डाल दे, उसकी दिल की दुनिया बदल दे, और जिधर इशारा कर दे उधर नेमतें बढ़ने लगे। तभी तो किसी ने कहा था कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। इन बुजुर्गाने दीन की जिंदगियों का मुताला करके अगर उसमें गमाजी करना चाहेंगे तो एक नुक्ता मुज्तमा आपको मिलेगा, वो है खुदा का खौफ। जब खौफे खुदा तारी हो जाता है तो अल्लाह का बंदा इबादत इलाही में गर्क हो जाता है, इसके नबी में मुस्तग़रक़ हो जाता है। उसको खुद को होश नहीं रहता, सिर्फ फिक्र रब के अहकाम की रहती है। इसलिए मेरे रब ने बुनियादी तौर पर कलाम रब्बानी में जो नादिर नुक्ता मुसलमानों को दिया है वो सिर्फ इत्तक़ुल्लाह का नुक्ता है। आप कलाम रब्बानी की तिलावत फरमाए, इब्तिदा से लेकर के बन्नास तक कलाम रब्बानी का मुताला करते चले। इस खशियत ने कैसा इनकलाब किया है, अल्लाह वालों की जिंदगी के अंदर कितना इनकलाब किया है। मैं तो कहता हूँ कि अल्लामा चमन कादरी तो बहुत बड़े थे, जब उनके गुलाम का आलम यह है तो सरदार की ताकत का आलम क्या होगा। गुलाम को देखकर जिन्नात ऐसे भाग जाते हैं जैसे कोई कुत्ता भाग जाता है किसी इंसान को देखकर। जब गुलाम की ताकत का आलम यह है तो सरदार की ताकत का आलम क्या होगा। वो जब तक दुनिया में रहे वो दीन का काम करते रहे, नबी की सुन्नतों को अपनाते रहे और दीन का पैगाम फैलाते रहे। जब तक दुनिया में रहे सजदा करते रहे, रोजा रखते रहे, नमाज पढ़ते रहे, ज़कात देते रहे और अपने मुरीदों को हिदायत करते रहे कि मैं तो जा रहा हूं दुनिया से मगर तुम भटकना मत, मैं तुमको एक ऐसा हीरा देकर जा रहा हूं जो दिल की दुनिया मिसाल नहीं बता सकती। वो अल्लामा चमन कादरी ने ऐसा फूल छोड़ा है जो आपके सामने तशरीफ फरमा है, ऐसा फूल दिया है, मुरीदों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप कादरी साहब से राब्ता कीजिए, आप देखिए कि अल्लामा चमन कादरी साहब ने
दीन की कितनी खिदमत की है और खौफ खुदा उन पर कितना तारी था। मैं तो जब खौफ खुदा तारी होता है तो अल्लाह का बंदा इबादत इलाही में गर्क हो जाता है, इसके नबी में मुस्तग़ा हो जाता है, खुद को होश नहीं रहता, सिर्फ फिक्र रब के अहकाम की रहती है। इसलिए अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में एक बहुत अच्छा नुक्ता फरमाया है, इत्तकुल्लाह। वो इत्तकुल्लाह का नुक्ता है, आपने उलमाए किराम की किताबों को पढ़ा होगा, जो पढ़ने वाले जानते हैं गौसुल वरा की जिंदगी को, कि जो मादरजाद वली थे अल्लाह ने उनको अज़ल से विलायत का ताज अता फरमाया था। मगर खुदा का खौफ देखिए, उलमा लिखते हैं जब आपने कई बरस तक पढ़ा, दीनी उलूम हासिल करके मुफ्ती भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, कारी भी हैं, हाफिज भी हैं, तमाम उलूम के आप बहरा पट बनने के बाद आपने सोचा अब तरीकत की राह की तरफ सफर होना चाहिए। फिर तरीकत की जस्तजू में निकले, अपने अकाबिर से इजाजतें लेकर के इबादत की वादी में गए। अब जो मादरजाद वली है वो अल्लाह की दीन की तबलीग